اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خیریت سے آپ سب لوگ سبھی کا طاہرہ نوشین معصومہ نور معصومہ سکینہ نوزت آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی کتنے لوگوں کے نام میں سے صرف ایک جی راغب آپ ٹھیک ہیں، غلام علی علی اصغر فرقان چراغ شارف آپ لوگ ٹھیک ہیں، نور معصومہ نوشین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی تفسیر موضوعی میں قرآنی قصوں کے بارے میں۔ ہماری تفسیر موضوعی کا سبجیکٹ کیا ہے اس والی کا؟ قصہ یہ قرآنی قصے، جس میں سے ہم نے پہلا درس پڑھا تھا اس میں سکینہ، اس میں بتایا قصہ اصل میں کہتے کسے ہیں اور قرآن میں کس معنی میں قصے استعمال ہوئے ہیں۔ تو خلاصتاً اگر دیکھا جائے تو قرآن میں وہ روایتیں جو گزشتہ قوموں کے بارے میں اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جس سے پڑھنے یا سننے والا اس سے نصیحت اور درس لے سکے، لیسن لے، ان روایتوں اور واقعات کو قصہ کہا گیا ہے قرآن میں، ورنہ قصے کے کئی معنی یہاں استعمال کیے گئے تھے۔ آج دوسرا سبق ہے کس بارے میں ہے؟ قرآنی قصوں کے اجزاء ترکیبی۔ یاد ہے نا ایک نظریہ کیا تھا؟ پہلا نظریہ کہ قصہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چار نظریوں میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ قصہ قرآن کی ان روایتوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر قصے کے سارے اجزاء ترکیبی پائے جاتے ہوں، جتنے بھی حدود و شرائط ہیں قصے بیان کرنے کو سب ہوں، تو وہ قصہ ہے جی، اسے قرآنی قصہ کہا جائے گا۔ لہٰذا اس نظریے کو اگر مانے تو اس اعتبار سے تو سورہ فیل میں جو اصحاب فیل والا داستان یا قصہ بیان ہو، وہ قصہ وہ بس ایسی روایت ہے، اسے قصہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مختصر طور پر بیان ہو گیا کہ قرآن جو قصہ ہے، قصہ بیان کرنے کا جو اجزاء ترکیب ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ جس طریقے سے قصے میں چیزیں جو ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہے اس میں، لہٰذا وہ قرآن کی آیت اور روایت تو ہے، وہ ایک روایت یہ ہے کہ ایسے ایسے خانہ کعبہ پہ ابراہیم حملہ کرنے آیا تھا، یہ ہوا تھا، لیکن پوری داستان نہیں ہے، اسے قصہ نہیں کہیں گے جی۔ ایک نظریہ یہ تھا نہیں، ایک دوسرا نظریہ کیا تھا؟ قرآن قصہ ان کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن قصہ اسے کہتے ہیں جو گزشتہ قوموں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ قرآن کے اندر وہ روایات جو پرانی گزری ہوئی قوموں سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہیں، وہ قصہ قرآنی کہلائیں گی، ورنہ جو ہمارے نبی کے زمانے میں حادثات رونما ہوئے وہ قرآن میں ہیں انہیں قصہ نہیں کہیں گے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کچھ لوگوں کا۔ بہرحال جو بھی تھا ہم قصے کے اجزاء ترکیبی یہاں بیان کریں گے، قرآنی جو قصے ہیں ان کے اجزاء ترکیبی کیا کیا بیان کریں گے اس درس میں؟ قرآن میں قصے کے اجزاء ترکیبی کا کس حد تک پاسولیت، دیکھیے آپ جا کے قصہ جو ادیب اور لٹریچر پڑھنے والے ہوتے ہیں اردو یا اس طریقے کے داستان نگار، انہوں نے چیزیں بنا رکھی کہ بھائی ایک داستان اور قصے کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ لحاظ ہونا چاہیے، خستہ ورنہ ہو اور اس طریقے سے بیان کریں یا اس طریقے سے لکھیں، اس کے کچھ اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، لیکن تو کہنے کا مقصد ہے قرآن میں ان اجزاء ترکیبی کا کس حد تک خیال رکھا گیا ہے ان داستان بیان کرنے میں۔ دوسرا کیا بات بتائیں گے اس میں؟ قرآن قصوں میں کردار کن خصوصیات کے حامل ہیں؟ قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کے اندر جو کریکٹر ہے، کردار یعنی کریکٹر، مثلا جب بنی اسرائیل کے قصے میں کریکٹر کون ہے؟ ایک جناب موسیٰ ہے، ایک فرعون ہے، ایک پوری امت ہے، جی ان میں کیا خصوصیات ہیں؟ تیسری بات اس میں کیا بتائیں گے؟ قرآن مجید نے مختلف قصوں کے جو مناظر ہیں اسے پیش کرنے میں کن باتوں پر توجہ دی ہے؟ قرآن میں کیا قصے نیند لانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ بس رات کو جب نیند نہ آ رہی ہے تو یہ قصے پڑھ لینا، یا دادی سنا دے گی یا نانی سنا دے گی؟ کیا اسی چیز پہ زوم کیا گیا ہے قرآن میں قصوں میں؟ اکثر قصوں کو، اکثر کے سارے ہی قصے اگر جو داستانیں بیان ہوئی ہیں اس میں کیا ہے؟ تاکہ عبرت لے سکو، قصہ بیان کرنے کے بعد کیا تھا؟ تاکہ عبرت لے سکو، درس لے سکو، لیسن لے، اسی لیے تو کیا اگر پرانا قوم کے بارے میں داستان بتائی جنہوں نے یہ کیا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ قوم مست ہو گئی، برباد ہو گئی، عذاب آ گیا،
तो क्या ये इसलिए है कि कहानी सुनो और सो जाओ, या इसलिए है कि ये कौम हम उस पर दास्तान में क्या करें, तवज्जो करें, तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, इन्होंने क्या ऐसी बातें की अच्छी जिनकी वजह से इनको अहमियत दी गई, और ऐसी क्या बुराइयां कमियां थी जो इनकी वजह से तबाह हो गए, ताकि हम उनको समझ के देख के परख के उस तारीख के बारे में क्या है, आईने की तरह होता है। मौलाना की एक हदीस है ना, मौलाना ने बयान किया है कि मैं अगरचे जितने भी लोग गुजरे हुए लोग हैं उन जितनी मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने इस तरीके से उनके हादसात में, उनके वाकयात में, उनकी जिंदगी में इस तरीके से मैंने उनको पढ़ के इतना गौरव फिक्र किया, इतनी तवज्जो और तदब्बुर किया, वो ऐसा लगता है जैसे मैं हर एक के साथ मौजूद था। आप जब किसी दास्तान को पढ़ेंगे, सही से जो किस्सा और दास्तान बयान करने का तरीका है उस पर गौर फिक्र करके अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तसल्जुल के साथ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप भी जनाब मूसा के साथ साथ नील पार कर रहे हैं, मसलन कभी हाँ दरिया फटा, ये हुआ, वो निकल रहे हैं, अब वो जा रहे हैं, या जंगलों में अपने गुनाहों की वजह से 40 साल भटक रहे हैं, आसमान से क्या नाजिल होता था, मन्ना और सलवा नाजिल होता था, खाने नाजिल होते थे इनकी फरमाइशों पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने बदतमीजियां की, गुनाह किए, नाफरमानियां की, और क्या कह रहे हैं कि अपने रब से कह दो कि हम जो है वो ये नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, बकलेहा व किस्साहा व फूमेहा व अदसेहा, दाल ककड़ी खीरा, ये जो कहावत है ना कि फकीर को अगर सोने का प्याला भी दे दिया जाएगा वो मांगेगा भीख ही। जी, तो उन्हें इनको मतलब आसमान से खाने नाजिल होते थे। नहीं, उन्हें तो दाल खीरा ककड़ी ये खाना था, अदर प्याज, अदर सेहा, फूमेहा, वो बसलेहा, ये है कुरान में नहीं। तो आप इस कुरान को अच्छे तरीके से मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तवज्जो करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे खुद आप उनके साथ में हैं, खुद आप उनके साथ, और आपके जैसे ऐसा लगेगा जैसे बस ये आपके सामने ही हो रहा है, आपके। तो मौलाना ने ये तो कहा सामने हो रहा कि है। मेरी दुनिया जब से खल्क हुई है, ये जनाब आदम से लेकर अब तक मेरे इंसान जो है वो मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने उनके आमाल में इतनी गौर व फिक्र तवज्जो की है, गोया कि मैं उन्हीं में से एक हो गया हूँ, जैसे वो मेरे सामने हुआ है सब कुछ ऐसा। जी, आप भी तवज्जो कीजिए जनाब आदम से लेके जिन जिन की दास्तान है, जो जो बयान हुआ है, उसे सही माना में गौर व फिक्र और आमाल में तदब्बुर के साथ आप पढ़ते चले जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे आप वही आपके सामने हो रहा है, ये आपके और मेरे सामने हो रहा है। आप जनाब आदम की दास्तान पढ़ी, कैसे खल्क हुए, अच्छे तरीके से जो दास्तान का है तदब्बुर का उस करके, तो ऐसा लगेगा जैसे वो पुतला आप ही के सामने बनाया जा रहा है जनाब आदम, है नहीं। तो ये तो कुरान ने जो किस्से बयान किए हैं, ये इसलिए नहीं है कि रात को नींद नहीं आ रही, आओ बच्चों कहानी सुनाऊं, नहीं, तदब्बुर तफक्कुर गौर व फिक्र उनके अमाल में, ताकि जो कमियों की वजह से उन पे अजाब आए वो हम न करें। अब अगर इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ कौम कौन होगी, जिनको सारी दास्तानें और उनके तबाह होने का रीज़न, क्योंकि इल्लत वो फारसी आपने पढ़ी है सभी का, सकीना, वो एक दर्स में क्या था तारीख के बारे में, तारीख के मियां मुजीब, हम तारीख से क्या सीखते हैं, उसी में एक जुमला ये था ना, तारीख इल्लत हादसा है, ये गुज़श्ते का बयान भी सुना, तारीख गुजरे हुए हादसात की जो इल्लत और रीजन है उसको बयान करती है, फला जगह ये हो गया था, ये झगड़ा हो गया, ये जंग हो गई, तो हमें पता लग जाता है जंग आखिर मामला क्या थे, किस वजह से जंग छिड़ी, हमें रीजन पता लगते हैं, समझ में आ रहा है, हमें रीजन पता जी। लगता है कि नबी के बाद कौम उम्मत दो हिस्सों में कैसे बढ़ गई, कैसे बढ़ी, जब हम उस पर गौर व फिक्र पढ़ेंगे, तवज्जो करेंगे, तो पता लगेगा कि बाद लोग मुनाफिक थे, नबी की बात नहीं मानी, फिर आखिर में कलम दवार भी नहीं दिया, हाँ ये रीजन था, और फला फला से क्यों जंग हुई, फला फला से क्या हुआ, इल्लत पता लगती है, रीजन पता लगता है हादसे का, समझ में आ रहा है। लिहाजा पुरानी किस्से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पुरानी किस्सों में मजीद में मुख्तलिफ किस्सों के जो मनाजिर मंजर पेश किए गए हैं, उनमें किन बातों पर तवज्जो की गई है, सही है। हाँ, पहले समझ में आ रहा है ना, जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं। इतरत फातिमा जी, शमीमा में जी आ रहा है। पुरानी किस्तों के अज्जाए तरकीबी, तरकीबी यानी किन किन अज्जा से मुरक्कब होकर किस्सा किस्सा बनता है जी, किन अज्जा से मिल के किस्सा बनता है, अदबी,
और फनी कहानियां, जो फनी कहानियां होती हैं उमूमन एक खास चौखट्टे और किरदार, उसमें क्या क्या चीज होती है, खास वो होते हैं, किरदार होता है, करेक्टर, एक मंजर, एक रफ्तार, एक जमाना, एक जगह, एक बातचीत की, इन तरह की चीजें मुअय्यन और मुशख्खस अनासिर से वो एक फनी कहानी इन चीजों से मिल के बनती है नहीं। लिहाजा उनमें जी से किसी भी उनसुर की अगर कमी कहानी को नाकिस या अधूरा बना देगी या बाद जगह बोर बना देगी। लेकिन पुराने किस्सों में ये अज्जा किस्से के हदफ और मकसद के ताबे हैं। पुराने मजीद में जो ये अज्जा है, किरदार, मंजर, रफ्तार, जमाना, ये मकसद के ताबे हैं। अगर कुरान का मकसद उस जगह पर उस वाक़े में कुछ और है तो उसी पे जूम करेंगे। फिर मतलब कुरान का एक मकसद है, मतलब बहुत सी जगह वो करेक्टर का नाम नहीं लेते कि फला ने ऐसा किया, बल्कि करेक्टर गिना देता है कुरान। जी, कुरान का मकसद लोगों को बुरा कहना नहीं है, वरना तो नाम के साथ कहा, कितनों को नाम के साथ तो अबू लहब को बस बुरा कहा है, नाम के साथ तो बस, वो जी भी किसी वजह से रीजन से तफसीर पढ़ेंगे तो पता लगेगा। लेकिन आप देख लीजिए, या मसलन फिरौन, वो तो पुराने लोगों की, अपने नबी के जमाने में क्या किसी को नाम लिया है? बस कह दिया कि वो लोग के जो पुश्ते हुजरों से आवाज बुलंद करते हैं या नबी के सामने आवाज बुलंद करते हैं, लास्ट होती है, वो किस बार उससे पता लगता है कि वहां पे लोग, इंसान का नाम नहीं बताया किसने आवाज बुलंद की, वहां सिर्फ सिफात बयान किए, सिफात बयान की, तो करेक्ट, ठीक है, जो मकसद और हदफ होता है उसी एतबार से किस्से को बयान करता है कुरान। जी, जी इन अज्जा से बस असले मकसद के हासिल होने और पैगाम रसानी, जिस चीज से पैगाम पहुंच जाए, इस हद तक वो कुरान यूज करता है इन चीजों को। कहीं पर अगर किरदार मेन है, करेक्टर, तो करेक्टर बयान करेगा। जी, जमाना मेन नहीं है तो जमाना बयान नहीं करेगा। जी, किसी जगह जगह मेन है, जगह बयान करेगा, जमाना बयान नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं? कुरान का जो हदफ है उसके उसके एतबार से किस्सा जो है वो इन चीजों को, जो अज्जाए तरकीब है उनको यूज करता है। अगर कहीं पे जमाना अहमियत नहीं रखता किसी दास्तान में, बल्कि जगह अहमियत रखती है, तो कुरान फिर जमाना बयान नहीं करेगा उस दास्तान में, क्या करेगा किस्से में, जगह के बारे में मसरूम करेगा। कहीं पे अगर करेक्टर अहम है तो करेक्टर बयान करेगा, और अगर कहीं करेक्टर इतना अहमियत नहीं रखता बल्कि बस और चीजें मुहिम है तो वो बयान करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी वरना तो अगर हर जगह चाहे बेफायदा चाहे फायदा हो किसी चीज का, कुरान तब भी सब चीजों को करता रहे, तो ये तो फिर दास्तान बन के रह जाएगी, ऐसी सिंपल वाली नॉर्मल बस वक्त पास करने की, चलो सो जाओ। फिर उससे दस थोड़ी लेगा इंसान, वो तो बस यूं कहानी बयान होगी। कहीं पे अगर करे, जो जमाना मुहैया भी बताना मकसद फायदा था, तो जमाना भी जिक्र होगा, नहीं तो जमाना जिक्र नहीं, जमाने का अगर बयान करने का कोई फायदा नहीं है उस दास्तान में। ठीक है, जी बात का अक्सर जगह कुरान में इंसान का नाम नहीं लिया है, बस करेक्टर क्या था उसका वो जिक्र कर दिया है। एक इंसान आया और उसने ये किया, फला यूं हुआ, कुछ लोग हैं जो यूं करते हैं, कुछ लोग हैं जो यूं करते हैं, नहीं, नाम तो नहीं लिया। बोलिए वल्लजीना, वो लोग के जो मसन इस तरीके के, तो वहां पे नाम नहीं लिया जी। तो वो क्या, अक्सर उन आयात में उनको सूरह हुजरात में, इसमें क्या, जो आवाज है वो क्या करते हैं, बुलंद करते हैं, नबी को ये करते हैं वो करते हैं, अक्सर उन आयात में, तो वहां पे नाम में नहीं था कि कौन कौन सा जो बेअकुल था उनमें, बस अक्सर उनमें बेअकुल थे, अक्सर उन आयात में। जी, जी तो ये जो अज्जाए तरकीबी हैं अदबी और फनी कहानियों के, किरदार, मनाजिर, रफ्तार, जबाना, जगह, बातचीत, इसको कुरान उसी हद तक इनमें से चीजों को यूज करता है जो असली मकसद तक पहुंच सके और पैगाम पहुंच सके, बस उसी हद तक यूज करता है इन चीजों को। इसी वजह से कभी किस्से के मनाजिर कुरान में तफसील से बनाया बयान कर दिए जाते हैं, मगर उसके किरदार और मरकजी शख्सियत का नाम कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। जी, आगे एक सवाल पूछूं। जी फरमाइए। अगर मैंने देखा है कहीं तो ये वाक्य लिखे होते हैं किसके वगैरह, और साइड में मौलाना उसके बाद में ना जैसे 12 का लिखा होता है, अब
इसका मतलब ये नहीं होता है कि एंड यहाँ पे हो गया, उसको आगे देखना तो वो आगे मिलता नहीं, वो 12 पीरियड हट, लेकिन ऐसा आगे क्यों लिखा रहता है? नहीं समझा, फिर से बोलिए। अगर जो वाकयात लिखे होते हैं, जो किस्से वगैरह कुरान मजीद में, तो उसके बाद में जैसे वो खत्म नहीं होता, और उसके बाद में 12 हर जगह लिखा होता है, 12 12, हाँ वो और उसको कुरान देखने है, से खत्म आगे होता है, कुछ मकसद है। एक उनमें से एक मकसद ये भी हो सकता है कि एक बात को बयान करके यहीं छोड़ दिया, एक नई बात शुरू की, फिर उस वाली बात पे आ गया कुरान, या कहीं और, जैसे आपने आयत तफसीर में देखा होगा, बात किसी और अहकाम की उसकी चल रही थी, अज़वाज नबी की, फिर एकदम से अहले बैत पे आ गए, फिर अहकाम बयान किए, जैसे आयत हुआ थी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की, बात जी। अहकाम आप की चल रही थी आगे का पीछे, मतलब क्या बात होता है, मैं अहकाम की समझ चल नहीं रही थी पाती। पीछे, फिर एकदम से ये आयत आ गई, फिर उसके बाद कोई और, तो ये एक तो वजह ये हो सकती है बोर ना हो जाए एक ही बात पे, दूसरा ये कि कुछ मकसद के तहत उनको वहां रखा गया है नबी की उससे हुक्म से, ताकि बात चीजों की बात, वरना कहीं और खुद यही चीजें अगर खुद आए तफसीर अगर यहाँ के अलावा कहीं और होती तो हो सकता है लोग कुछ और कर देते, मस्त कर देते, कुछ कर देते, ये कर देते, कुछ दूर अंदेशी के एतबार से ये चीजें हैं, ठीक है। आगे वो मैं समझ में नहीं आता, मैं स्क्रीन शॉट आपको भेज के पूछूंगी। ठीक, जी। लिहाजा आपने देखा होगा किसी कभी किस्से का मनासिर तफसील से बयान, उस किस्से के मनासिर सारे नज़ारे जो है क्या हो जाते हैं, मंजर तफसील से बयान कर दिए जाते हैं, मगर उसके किरदार और मरकजी शख्सियत का नाम ही कहीं कहीं लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा रजुलुन मुमिनुन यक्तुमु ईमानहु, कुरान में कहा है ना, एक मर्द मोमिन था जिसने अपना ईमान ये पोशीदा रखा था, ये किया था, वो बयान कर दिया, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिया, कौन था वो, कौन था वो? तफसीर से पता लगता है वो कौन था। जी, देख के बताओ ना मुझे, तो मैं बताऊं तुम्हारा किस काम के हो फिर, ठीक है। हिजकील, जनाब हिजकील, इसी वजह से, ठीक है। और कभी मुख्तलिफ किरदारों की बाहमी गुफ्तगू को ही किस्से करके, कुछ किरदार हैं उनके आपस में क्या गुफ्तगू हुई, उसी को किस्से का महवर और वो बना देते कि उसी के दर उसी के ऊपर किस्सा होता है पूरा, लेकिन जमाना और जगह का जिक्र मुबहम रह जाता है कि किस जमाने की बात है, किस जगह पे हुई ये बात, होता है नहीं। कुरान जी। में और जो किस्से जो है कहानी और किस्सों के जो तरकीबी अज्जा हैं, पार्ट्स हैं, उनमें से हर एक को जितना मकसद कुरान का है अपने मकसद के तहत यूज करता है, वरना तो अगर कोई मकसद नहीं है उसका तो उसे बयान नहीं करेगा। कहीं जमाना बयान नहीं है तो कहीं जगह बयान नहीं है, तो कहीं करेक्टर बयान है, किरदार, लेकिन नाम नहीं है। सही है जी। जी आका। अब हम किस्से के कुछ बुनियादी जो अंसुर हैं और अनासिर हैं उनकी मुख्तसर वजाहत के साथ कुरान मजीद से कुछ नमूने पेश कर देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कहानी या एक किस्से में एक अहम चीज होती है, बुनियादी चीज क्या होती है, किरदार, कैरेक्टर। जी, किस्से के जी। बुनियादी अनासिर में से अंसुर में से असली किरदार, असली कैरेक्टर किस्से का अहम तरीन अंसुर माना जाता है, नहीं पार्ट। तारीखी दास्तानों और ख्याली अफसानों में किस्से का मरकजी किरदार अंजाम देने वाली शख्सियत तमाम वाकयात पर हावी रहती है, चाहे वो किस्से हकीकी हो, सच्चे हो, चाहे वो अफसाने हो। अलिफ लैला में मतलब, या मतलब हाकिम अली क्या है, अली बाबा 40 चोर में अली बाबा करेक्टर है वो पूरी उसमें रहेगा। हाकिम ताई में हाकिम ताई मसलन, या मिसाल के तौर पर और बहुत से जिन्हें कि बहरहाल नहीं, वो चाहे वो अफसाने हो चाहे वो कहानी, तो कहानी है ना, जी आका। किस्सा है, दास्तान है, चाहे वो हकीकी हो चाहे अफसाना हो, लेकिन मेन करेक्टर बोलिए। या जैसे आप अहले हमरूद में क्या है, महाभारत है, महाभारत में उनके सब में, या मिसाल के तौर पर वही है अब रावण वाला, तो उसमें मेन करेक्टर क्या है, रावण है, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, ये चार पे ज्यादा मिलेगा आपको, जूम हुआ हुआ। अब भी बाद में एक शख्सियत और बढ़ जाती है उसमें, आप ये बताइए कौन, हनुमान मसलन, ठीक है। तो ये मेन किरदार जो होते हैं पूरे करेक्ट पूरी दास्तान पे वाकये पे हावी रहते हैं, इनको किस्सा पढ़ने लेकिन जो जो जैसे वैसे जो पुरानी दास्तान है, जो हकीकी जो पुरानी दास्तान है उनमें भी आप देखिए, अगर फिरौन और मूसा, जनाब मूसा का है पूरी दास्तान, तो पूरा करेक्टर कौन है, जनाब मूसा और फिरौन। आइए, किस्सा पढ़ने वाले की
की तवज्जो अक्सर उसी रोल पर मुतमरकिज रहती है, उसी पे जूम रहता है। इसलिए वो कहानी के उन्हीं हिस्सों की तलाश में रहता है इंसान जिनमें उसने कोई किरदार अदा किया हो। लेकिन पुरानी दास्तानों में किस्से का महवर फकत बुनियादी किरदार नहीं होता। इसीलिए अक्सर वो दास्तान जिनका असली किरदार अंबिया अलैहिस्सलाम है, उनमें पैगंबरों को आइडियल और नमूना उसवा और इंसान कामिल के मिसदाक के तौर पर पेश किया गया है कि उनकी जात मकसूद नजर नहीं, क्योंकि जात बयान करना अहम वो नहीं था, बल्कि सिर्फ ये कि आइडियल है, इंसान कामिल है। कुरान मजीद में वो बहुत से किस्से जिनमें मरकजी किरदार नबियों के बजाय दूसरों दूसरों हों, जैसे मर्दों, औरतों, हैवानों, जिन्नों या फरिश्तों ने अदा किया है, जिनमें किरदार उन दास्तानों में किस्सों में पुरानी उनका नामो निशान बताए बगैर मुबहम तौर पर किस्सों में तस्करा किया गया है। किरदार ही नहीं बताया कि मेन किरदार कौन है, ताकि किस्से का असल हदफ और पैगाम किस्से की शख्सियत और किरदार के जेर असर पहुंचना, कहीं वो जो असल मकसद है जो उस वाक़े और किस्से को बयान करने का इबरत दर्द नसीहत लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उस पे उस किरदार अगर नाम आ जाए तो उसके ऊपर जूम करके रह जाए इंसान, मेन हदफ से भटक जाए, मेन हदफ खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।